Good morning, kids. As we have completed our chapter 9, we will do the back exercises today. Okay, so you have to take out your book, and if you have done, then you match the answers. If not, then do it with me. Okay, we will do the fill ups first. Okay, A. Number 1. The camel lived in dash desert. Camel lived in कैसे desert में रह रहा था camel? In a howling desert, जहाँ बहुत ही तेज़ आवाज़ें आ रही थी, the sounds and the loud sounds and the crying sounds. Okay. Number 2. Dash was in charge of all deserts. Who was the in charge of all deserts? कौन था जिसके बारे में बात हो रही थी, जो सभी पूरे deserts का in charge था? Jinn. Okay, Jinn was in charge of all deserts. Number 3. The Jinn found the camel looking at his dash in the pond, in the pool. Okay, जब वो उसको ढूंढने के लिए जाता है, when the Jinn was looking for the camel all around in the desert, तो वो उसे क्या करते हुए पाता है, क्या कर रहा होता है कैमल उस वक्त? कैमल was sitting by a pool, वहाँ पे बैठ करके वाटर पूल के पास, और वो क्या करता है? He was looking at his रिफ्लेक्शन, वो अपने रिफ्लेक्शन को, अपने आप को उस वाटर पूल में देख रहा होता है. नंबर 4. द मैन टोल्ड द 3 एनिमल्स टू वर्क डैश टू मेक अप द कैमल्स शेयर ऑफ वर्क. मैन क्या कहते हैं उन 3 एनिमल्स को क्या करने के लिए? जब वो 3 एनिमल्स उस मैन के पास जाते हैं अपनी कंप्लेन लेकर के, तो वो उन्हें क्या करने को कहता है? देन द मैन टोल्ड द 3 एनिमल्स टू वर्क double. Okay, then he asked them to do the work double to make up to the camel's share of work. Okay, then the last one, number 5. The dash and the dash, the 3 animals. कौन कौन से animals जाते हैं कैमल के पास, ये आपको बताना है. The horse, the dog and the ox. 3 animals जाते हैं ना मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को. So the 3 animals were the horse, the dog and the ox came to ask camel to work with them. आते हैं और कैमल के पास बोलते हैं ना कि हम लोग अपना अपना वर्क कर रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ वर्क करने के लिए. ओके, नाउ लेट अस डू द मैच इट. Number 1, Jinn. You have to find the correct answers from here. Idol, dust cloak, yoke, saddle, stick. Number 1, Jinn is matched with dust cloak. जिन जब एंटर करता है, then he was wrapped in his dust cloak. वो जो लंबा सा लॉन्ग क्लोथ है जो उसके नेक से नीचे तक आ रहा होता है, उसी में वो wrapped रहता है. So he was in the dust cloak. Number 2, camel. Camel was idle. वो बस ऐसे ही लेजी सा बैठा हुआ था. He was not doing any work. So camel is matched with idle. You have to write number 2 here. देन डॉग के साथ क्या मैच करेंगे? योक, सैडल और स्टिक. डॉग केम विद द स्टिक, और वो उसे फेच करने को कहता है ना. सो डॉग विद द स्टिक. सो नंबर 3 हियर. नंबर 4, ऑक्स विद द योक. जो कॉलर उसके नेक के पास लगा रहता है, विच दे वियर टू कैरी द लोड्स. सो दैट इज कॉल्ड द योक. नंबर 4 हियर. नंबर 5, हॉर्स के बैक पे क्या था? दैट वॉज सैडल, जिस पे कि घुड़सवारी करने बैठने के लिए लगाया जाता है. दैट इज सैडल. ओके, सो 2, 1, 4, 5, 3. जिन, डस्ट क्लोक, कैमल, आइडल, डॉग, स्टिक, ऑक्स, योक, हॉर्स, सैडल. ओके, सो दिस इज डन. You have to do this much, and the word meanings also. You have to learn all the word meanings and the difficult words which I have given. Now let us discuss the questions of the references. Then I'll send you the written ones also. Okay, let us discuss the first one. Number C. Answer these questions based on reference to the context. ये पाठ हमें पढ़ना है, then we have to give the answers. I'm very sorry for the 3 of you. That humph thing in Howling Desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. ये जो लाइन्स हैं आपके चैप्टर से हैं, फ्रॉम द मिडल दे आर, दैट
आई एम सॉरी फॉर द थ्री ऑफ़ यू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप तीनों के लिए। आई रियली फील सॉरी कि वो जो हम थिंग है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। अगर वो वर्क करता तो उसे अभी यहाँ होना चाहिए था। मैं उसे बिल्कुल अकेला छोड़ने जा रहा हूँ और अब आप लोगों को, आप तीनों को डबल टाइम वर्क करना होगा ताकि उस काम को कॉम्पनसेट किया जा सके, उसे मैनेज किया जा सके। सो नाउ सी द क्वेश्चंस। नंबर 1 ए, हु स्पोक दीज लाइन्स, ये लाइन्स किसने कहे थे? The man, okay, the man spoke these lines. Number B, who does he refer to, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? That he would have been here, उसे यहाँ होना चाहिए था अगर वो काम करता तो, ही अगर वो लेज़ी नहीं होता। So who does he refer to, यहाँ he किसके लिए रेफ़र हुआ है? He refers to the camel here, यहाँ camel के लिए बात हो रही है ना। So he refers to the camel here. Number C, who are the three? Here you can see the three. I really feel sorry for the three of you. तो यहाँ कौन से three हैं, किन लोगों के बारे में बात हो रही है? The three are the horse, the dog and the ox. Okay. Now see the number 2. That's made for a purpose. All because you missed those 3 days of work. Now you will be able to work for those 3 days without eating because you can leave on your hump. Okay, कि ये जो है हर चीज़ किसी ना किसी एक पर्पस से, किसी कारण से होती है। ये भी एक कारण से बना हुआ है। और क्योंकि तुमने वो 3 दिन मिस किए, तुमने काम नहीं किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कैमल ने कोई वर्क नहीं किया था। सो अब तुम आगे का जो भी 3 दिन है वो बिना कुछ खाए हुए और वर्क कर पाओगे, क्योंकि तुम अब अपने इस हम्फ की हेल्प से सर्वाइव कर सकते हो, बिना खाए हुए भी रह सकते हो। ओके, हु स्पोक दीज लाइन्स, ये लाइन्स किसने बोले थे? द जिन। ओके, द जिन स्पोक दीज लाइन्स। हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग टू, ये जो स्पीकर है मीन्स द जिन, वो किससे बात कर रहा है? टू हुम इज़ ही स्पीकिंग, किससे बात हो रही है? द स्पीकर इज़ टॉकिंग टू द कैमल, वो कैमल से कह रहा है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेड विद अ पर्पस, कौन सी चीज़, अबाउट व्हाट द जिन इज़ टॉकिंग अबाउट, कौन सी चीज़ एक पर्पस से बनी हुई थी? किस चीज़ का को बनाया था उसने पर्पस से? द हम्फ। ओके, द हम्फ was made with a purpose. So that's it with your back exercises and the references. Now you have to complete the fill in the blanks and match it. Learn all the difficult words and word meanings, and I'll send you the written ones of the references. Okay, so go through the chapter and do all the word meanings and back exercises. Okay, thank you.